मेरा वो चले जाओ। तो चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's our topic of discussion is a continuation of our last uh, topic, the election of the president in the USA. डायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके पेज 103 पे है डायरेक्ट इलेक्शन इन प्रैक्टिस। Although the US Constitution prescribes a system of indirect election, yet in practice election of the president has become almost direct. The change has been thought about by the growth of powerful ये किसने अपना माइक ऑन किया हुआ बंद कर देगा? Yet in practice, election of the president has become almost direct. The change has been thought about by the growth of powerful political parties in America. Months before the date of presidential election, the national political parties hold their national conventions and nominate their presidential candidates. The parties in each state nominate their own candidate for the presidential electoral college. The ballot papers are so printed that by one cross, a voter can vote for the whole list of presidential electoral electors put up by a particular party of his choice. This victory of a particular party in the election of presidential electors means the election of that party's candidate to the presidentship. The formal election in each state and counting of votes by the Congress are conducted just as a necessary constitutional formality. Thus, to all
all intents and purposes, the presidential election in the United States has become direct. The country knows weeks before the actual date of election as to who is going to be elected. The voters in states do not in fact cast votes for the presidential electors, but they cast a direct vote in favor of uh, presidential candidates whose names are already known to them. The election of the Electoral College is just a formality. If the election of this intermediary body was to be excluded, the same result would have accrued. Thus, with the growth of strong political parties, the powers of electing the president has been actually transferred to the people, although the framers of the Constitution wished it otherwise. On the occasion of the presidential election held in November 1968, Mr. Nixon won and Mr. Humphrey was defeated. However, there are two aspects of this election which deserve mention. Under the American indirect method of choosing a president, the possibility of a deadlock at the polls is always there. This possibility becomes a reality if three or more candidates of strong national appeal fight for the presidency, although it is rare under the traditional two-party system in America. In 1968, George C. Wallace, the former governor of Alabama, was nominated as its candidate by the American Independent Party. There arose the possibility that neither of the uh, candidates, Wallace, Nixon, and Humphrey, may get the requisite number of votes. There are 538 electoral votes and a majority of 270 is required for election. The total popular vote itself does not count. Fears were expressed that the country may have to face the deadlock, and in that case, it was for the House of Representatives to choose the president. It was pointed out that such things had happened in 1800 and 1824. In the first case, the problem was not the lack of majority for any candidate. It was a tie between Jefferson and Booth, who had polled 73 votes each. They were running mates and not opponents. The House of Representatives had to all voted to decide in favor of Jefferson. Then the Constitution was amended to that separate votes could be cast for President and Vice President. In 1824, no candidate had a majority. Andrew Jackson was first, John Quincy Adams second, and William H. Crawford third. It was a dramatic decision which the House of Representatives had to make. It all came to the vote one state, New York, and one delegate. The lone delegate was reluctant to be the arbiter, but Adams won when he picked his ballot after a prayer to God to help him to choose correctly. It is true that the fears of deadlock were there in 1968, but all those fears were allayed and Mr. Nixon won the requisite number of electoral votes required for his election. Mr. Nixon carried 32 states with 301 electoral votes to 191 for Mr. Humphrey. The national popular vote for Mr. Nixon was
3,17,70,247, and for Mr. Humphrey 3,12,70,533. This shows that the difference between the two candidates was only two-thirds of 1%. It was for this reason that after the elections, Mr. Humphrey described the Electoral College system as archaic and suggested that this should be scrapped and replaced with direct popular election of the president. He did not spell out a specific plan but urged the Democratic Party to take the lead in shaping and pushing a constitutional amendment to overhaul the election mechanism. After election, the president has to take the oath of office, which runs thus: I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States of America and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of USA. Although the President is otherwise irremovable during the term of his office, he can be removed by means of impeachment. The Constitution provides that the President can be impeached for treason, bribery, or other such high crimes and misdemeanors by the House of Representatives. He can be tried by the Senate with the Chief Justice of Supreme Court as the President. A two-thirds majority of Senate is necessary to convict. Otherwise, during the term of his office, the President is immune from the jurisdiction of ordinary courts. तो यूएसए के अंदर जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है फॉर प्रेसिडेंट, वो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसमें जो हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें यही चीज़ यानी हमने अंडरस्टैंड की कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, दैट इलेक्शन इज इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब ये जो ऑथर हैं उनके मुताबिक इलेक्शन जो है इन प्रैक्टिस डायरेक्ट है, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनडायरेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है उस इलेक्शन की, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन वहाँ पे डायरेक्ट होता है यूएसए में प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर प्रोसीजर को देखें, वो तरीकाकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, वो भी वो इनडायरेक्ट है। जब प्रेसिडेंशियल ईयर आता है, जैसा कि 2020 भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर है, तो जनवरी के अंदर इलेक्शन ईयर में एक कन्वेंशन कॉल किया जाता है दोनों पार्टीज का, और वो कन्वेंशन होता है समर के अंदर। दोनों पार्टीज अपने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पार्टी मेंबर्स जो हैं हर पार्टी के अपने अपनी पार्टी के कन्वेंशन में 1000 डेलीगेट्स भेजते हैं और 1000 अल्टरनेट डेलीगेट्स भेजते हैं। जब कन्वेंशन होता है तो कन्वेंशन के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसकी नॉमिनेशन होती है कि कौन सा हमारा कैंडिडेट होगा एज प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर ऑफ दी सेम ईयर। ये तो होगी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की नॉमिनेशन। उसके बाद नवंबर के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्शन होना है, उसके अंदर कौन कौन से बंदे जो है एज इलेक्टर्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे।
उसके लिए होता है प्राइमरीज का इलेक्शन। तो प्राइमरीज का इलेक्शन जो है वो हर पार्टी के जो विद इन पार्टी जो मेंबर्स हैं, दे वोट फॉर द इलेक्टर्स to stand in electoral college election in November of the same election year। तो वो प्राइमरीज के इलेक्शन में जो इलेक्टर जो होते हैं हर पार्टी के जो इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो अपने अपने बंदे जो है पार्टी विद इन पार्टी उनको खड़ा करते हैं प्राइमरी इलेक्शन में। तो पार्टी मेंबर्स उनको वोट कास्ट करते हैं। तो उस चीज़ से ये चीज़ भी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाती है कि इस पार्टी का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होगा। और फिर जो इलेक्टर जो हैं वो आफ्टर इलेक्शन सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, वो फिर नवंबर में जाके इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ देयर पार्टी। तो नवंबर के अंदर जब इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर जो है उसके ऊपर एक साइड पे डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उनके इलेक्टोरल उस स्टेट के अंदर जो स्टैंड किए हैं उस डेमोक्रेटिक पार्टी ने, उनके नाम होंगे, और दूसरी साइड पे उनके नाम होंगे रिपब्लिकन पार्टी। फॉर एग्जांपल इस साल इलेक्शन ईयर है, तो इसमें नवंबर में इलेक्शन होना, तो एक तरफ जो है रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट है ट्रंप, जो यानी कि सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका है जो बाइडन। अब बैलेट पेपर के ऊपर इन दोनों कैंडिडेट्स के नाम प्रिंट नहीं है। तो अगर उनके ऊपर नाम प्रिंट नहीं है, लोगों ने जो वोट कास्ट करना है, तो उनको ये फैसिलिटी है कि उनको जब क्रॉस वाली स्टैंप दी जाएगी वो बैलेट पेपर के ऊपर, टॉप के ऊपर अगर वो स्टैंप लगा देंगे, उसके नीचे जिस पार्टी के इलेक्टोर्स होंगे, इट मीन्स कि उसने उन सब को ही वोट कास्ट कर दिया है। तो जब उसने स्टैंप करनी है वहां पे, तो वो स्टैंप ना तो वो ट्रंप को करेगा, ना वो जो बाइडेन करूंगा वो करेगा ऑन बैलेट पेपर। लेकिन उसके माइंड के अंदर उसकी जो इंटेंशन होगी एट द टाइम ऑफ स्टैंपिंग एट द बैलेट पेपर, वो यही होगी कि ये जो इलेक्टर्स जिनके ऊपर मैं स्टैंप लगा रहा हूँ बैलेट पेपर में, जिनके नाम प्रिंट है, तो ये किस पार्टी के हैं और किस कैंडिडेट के हैं। तो फिर अगर रिपब्लिकन के इलेक्टर्स जो हैं, अगर उनको वो वोट कास्ट कर रहा है, इट मीन्स के वो वोट इनडायरेक्टली वो वोट कास्ट कर रहा है ट्रंप को। रिपब्लिकन पार्टी वाले जो इलेक्टर्स हैं, अगर उसको स्टैंप करेगा तो वो ट्रंप को करेगा। तो इन अ सेंस अगर आप इसको देखें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, बट अगर आप इन प्रैक्टिस देखें तो ये डायरेक्ट इलेक्शन ही हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्टर्स हैं उनका रोल इलेक्शन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर तो वो जो इलेक्टर्स हैं जिनके नाम बैलेट पेपर थे उनके ऊपर स्टैंप किया गया, अगर उनको भी कोई रोल दिया जाता इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन हम कह सकते थे कि ये इलेक्शन जो है इन प्रैक्टिस इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो उन इलेक्टर्स को इलेक्ट करके भेज देते किसी भी काउंसिल के अंदर या कांग्रेस में, तो वो वहां जाके फिर अपना एक नया इलेक्शन करते प्रेसिडेंट के लिए। जैसे इधर भी यूनियन काउंसिल के इलेक्शन जो होते हैं उनमें काउंसलर्स को वोट कास्ट करते हैं लोग, और जो चेयरमैन होता है यूनियन काउंसिल का उसको भी वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद जो हर यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं इन तहसील
वो जाके आगे फिर उनका इलेक्शन होता है, वो फिर एक बंदे को अपना तहसील चेयरमैन या जिला चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। तो जो म्यूनिसिपल कमेटीज थी वहाँ पे जो काउंसलर थे, काउंसलर्स को लोगों ने वोट कास्ट किए और उन्होंने जाके म्यूनिसिपल कमेटी में अपना एक चेयरमैन जो है खुद उन्होंने वहाँ पे एक नया इलेक्शन हुआ और फिर एक चेयरमैन आया। तो यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए में इलेक्टर्स का रोल जिस दिन इलेक्शन हो गया उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और बैलेट पेपर के ऊपर जब लोग स्टैम्प करते हैं तो वो आप कह लें कि इम्प्लाइडली या उनकी इंटेंशन जो होती है वो होती है कि हम प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है इस पार्टी का, हम इसको ही वोट कास्ट कर रहे हैं, ना कि इलेक्टर्स को। लेकिन स्टैम्प इलेक्टर्स के नाम के ऊपर ही लगती है। तो जो पॉपुलर वोट जो है फिर इस तरह ये भी हो जाता है कि जो पॉपुलर वोट, अगर वोट्स की गिनती की जाए कि कितने लोगों ने किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट कास्ट किए हैं, तो ये 1968 के अंदर तो जो पॉपुलर वोट था वो यानी कि आप थाउजेंड्स का डिफरेंस आया दोनों कैंडिडेट्स का। तो यानी कि आप कह लें कि 5,000, ऑलमोस्ट 5,000 वोट्स का डिफरेंस आया पॉपुलर वोट्स का ऑल ओवर दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो फिर वो हम्फ्री थे, एक कैंडिडेट जो डिफीट की हुए इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है उनकी पॉपुलर चॉइस जो है उसको नहीं देखा गया। अब फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन या कह लें टेक्निकली एक चीज जो अ, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर हो, जैसा कि यूएसए के अंदर है, तो वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का जो माइंड है उसको वो रॉन्ग लगती है, यानी वो ठीक नहीं लगती। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क जो है वहाँ के अंदर, वहाँ इलेक्टोर्स जो है वो है 43। तो अब हर स्टेट के अंदर जो इलेक्टर्स कितने होंगे, वो होंगे कि उस स्टेट के जितने मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर है प्लस 2 जो सेनेट के हैं हर स्टेट के, क्योंकि 2 सेनेट के अंदर है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन सेनेटर जो है हर स्टेट के दो दो ही सेनेट के अंदर मौजूद है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जितने मेंबर्स हैं उस स्टेट के प्लस 2 करके यानी 2 ऐड करके जितनी भी काउंटिंग आएगी उतने ही इलेक्टर्स होंगे उस स्टेट के फॉर द पर्पसेस ऑफ presidential election in electoral college in November of election year। तो न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे 41 मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, 2 सेनेट के ऐड करके 43 हो गए कांग्रेस के अंदर उनके मेंबर। तो इसी तरह वहाँ पे 43 इलेक्टोरल वोट्स हो जाएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इलेक्टोरल कॉलेज का, तो वहां पे ट्रंप जो है उसको वोट मिल गए हैं 22, और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट उसको वोट मिल गए हैं 21 इलेक्टोरल वोट्स। अब जब जाके फाइनली इनकी काउंटिंग होनी है कांग्रेस के अंदर दिसंबर में इलेक्टोरल वोट्स की, तो न्यूयॉर्क के अंदर ट्रंप क्योंकि एक इलेक्टोरल वोट की वजह से विन कर गया है, तो जो बाइडेन को जो 21 वोट्स मिले हैं इलेक्टोरल, वो वोट भी ट्रंप को मिल जाएंगे। यानी ट्रंप को न्यूयॉर्क से 43 वोट ही मिलेंगे। हालांकि 21 इलेक्टोरल जो है
they were selected or elected by the people of New York of डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो हारने वाला है उसके वोट भी चले जाएंगे जीतने वाले को। इस ये फार्मूला वहां पे लगाया जाता है कि विनर टेक्स ऑल बेसिस, इस बेस पे। तो अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया, उनकी वो ट्रंप चॉइस नहीं थी। ट्रंप को जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, वो लोग उसको नहीं पसंद करते थे। उन्होंने जो बाइडन को वोट कास्ट किया। तो जो बाइडन के 21 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो सारे के सारे ट्रंप की बास्केट में चले जाएंगे। तो ये चीज जो है, ये एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई भी माइंड है या पर्सन है, उसको ये थोड़ी सी इरिटेटिव जो है फील होती है। तो अब ये है इलेक्शन का वहाँ प्रोसीजर है, ये डायरेक्ट इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन प्रैक्टिस अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट इलेक्शन ही बन जाता है। तो इन केस के किसी भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी इलेक्शन में नहीं मिली तो उनका केस फिर चला जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 50 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। दे वेरी, उनकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे भी वो वेरी करते हैं वहाँ पे, किसी के कम है किसी के ज़्यादा। लेकिन जब किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो वो जो पहले दूसरे और तीसरे नंबर वाले बंदे होंगे कैंडिडेट, उनका इलेक्शन होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो वहाँ जितने मेंबर होंगे मौजूद, तो वो फिर सारे वोट कास्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे हर स्टेट को एक वोट दिया जाएगा, यानी 50 स्टेट्स हैं तो 50 वोट जो हैं, या कह लें कि 50 मेंबर जो हैं, दे शैल बी एलिजिबल to cast the vote for presidential candidates in case of no candidate have uh, obtained the majority in presidential election. उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ओथ लेगा। तो ओथ की भी जो वर्डिंग है वो भी इसमें बताई गई है कि आई डू solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of the President of United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of United States। तो वो हलफ लेगा प्रेसिडेंट जो है कि मैं ये हलफ देता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको यूएसए का ये जो फंक्शन है उनको एग्जीक्यूट करूँगा, अपने ड्यूटीज़ को निभाऊंगा और मेरी बेहतरीन जो सलाहियतें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को डिफेंड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा और प्रिजर्व करूँगा। यानी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेरी ड्यूटीज बताई गई हैं, जो मेरे ऑफिस के फंक्शन हैं, वो मैं परफॉर्म करूँगा अकॉर्डिंग टू दी powers provided in the Constitution. I shall not go beyond my jurisdiction. उसके बाद फिर ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस ही इज इम्पीच्ड, यानी इम्पीचमेंट के अलावा उसको ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता।
तो फॉर इम्पीचमेंट उसके खिलाफ जो एलिगेशन होंगे वो होंगे treason, bribery or high crimes or misdemeanors by the हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा एंड शैल पास द एलिगेशन आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग दोज एलिगेशन के क्या जो एलिगेशन प्रेसिडेंट के खिलाफ लगाए गए हैं आर दे फिट फॉर ट्रायल, क्या कि उनके अंदर उसके साथ जो प्रूफ दिए गए हैं, सबूत दिए गए हैं, क्या वो इनफ है कि ट्रायल इनके खिलाफ कंडक्ट किया जाए। तो वो फिर ट्रायल जो है सेनेट के अंदर होगा। तो सेनेट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल वहाँ पे वोटिंग होगी। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए या कहने कन्विक्ट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी सेनेट के अंदर जब वोटिंग होगी। उसके बाद जिस वक्त सेनेट के अंदर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग होगी अगेंस्ट प्रेसिडेंट, तो उस वक्त सेनेट को प्रिजाइड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रूटीन के जो डेज हैं उनमें प्रेसिडेंट होता है सेनेट का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के खिलाफ सेनेट के अंदर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स होगी तो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको प्रिजाइड ओवर करेगा सेनेट की प्रोसीडिंग्स को। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सेनेट at the time of impeachment proceedings against President of USA because he shall be the beneficiary of the outcome of the impeachment proceeding if the President of USA is declared convicted after uh, 2/3 majority in Senate। तो इसलिए उसको फिर सेनेट के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग में प्रिजाइड करने नहीं दिया जाता। तो बाकी जितनी भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं यूएसए के अंदर वहाँ पे इनको इम्यूनिटी हासिल है प्रेसिडेंट को कि दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन ओवर प्रेसिडेंट। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। When the presidential candidate has been chosen, the selection of the party nominee for the vice presidency is made in the same way, but usually with less trouble and sometimes in a great hurry, for the big fight is over and the delegates are in a good mood to get home. But in nominating the candidate for the vice presidency, there are roll calls, speeches, demonstrations, and balloting, all less exciting as a rule in some cases. However, the context for the nomination becomes close and exciting. In is an axiom of practical politics that the vice presidential nominee should be someone who will balance the ticket. That is, he should supplement the strength of the presidential nominee by being drawn from another region of the county and representing a different section of the party. At his inauguration into office, every new vice president takes an oath of office like the president, but unlike the president, he has no official residence. He too can resign his office and be removed by impeachment, treason, etc. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नॉमिनेशन और उसका जो इलेक्शन है उसका सारा जो प्रोसीजर है इज
सेम लाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है, हर पार्टी ऐसा बंदा चूज करती है कि जो प्रेसिडेंट जिस हल्के से आया है या जिस एथनिक कम्युनिटी से आया है या किसी ऐसी स्टेट से आया है जहाँ इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो फिर वो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फिर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर गोरा है जैसे ट्रम्प है, वाइट है, तो पार्टी की ये कोशिश होगी कि उसके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हम कोई ब्लैक ले लें या एशियन ले लें या कोई और एथनिक कम्युनिटी का बंदा ले लें, ताकि हमें उन पे भी वोट मिल जाए। तो और ये एक पार्टी की ये पिक्चर हो के हम सबको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गोरा भी है और वो किसी इंडस्ट्रियल स्टेट से है, तो फिर पार्टी कोशिश करती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हम किसी और एथनिक कम्युनिटी के से लेने के साथ साथ हम वो ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसी स्टेट से आए जहाँ जहाँ पर इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट बेस पे ना हो या यानी एग्रीकल्चरस्ट हो या कोई और। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनको पुश करने के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों डिफरेंट सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी से हों। तो उसके बाद यही मिसाल ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं मुगला बरादरी के या हमारे लोकल इलेक्शन होते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं। तो अगर मुगला का है तो उसको जो ग्रुप है तो वो एक अगर जज उनका अगर प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है तो वो कोशिश करते हैं कि जो सेक्रेटरी का कैंडिडेट है वो हम ले लें किसी और यानी बरादरी से, ताकि हमें उनके वोट भी मिल जाए। इसी तरह वहाँ पे भी ये कोशिश की जाती है कि दो डिफरेंट सेक्शन जो है सोसाइटी के, वहाँ से कैंडिडेट लिए जाए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लाइक प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करने से पहले हलफ लेगा और उसको प्रेसिडेंट को जैसे व्हाइट हाउस में रहायश दी गई है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं होती। तो उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट है, ही कैन रिजाइन जस्ट लाइक प्रेसिडेंट एंड जो है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय impeachment, पार्टीजन एक्सेट्रा। ये टॉपिक हमारा आगे ये शुरू हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लें अपने और क्वेश्चन पूछें। एनी क्वेश्चन? Any question?